हेलो एवरीवन। दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to cover the objective part of the RTP released for the CA final students. Before going to the RTP, we need to first confirm. We need to first check what study material is relevant for us for the upcoming examinations. So September 25 एग्जामिनेशन के लिए आपका जो स्टडी मटेरियल है, November 24 edition of study material that is relevant, उसमें that contains all the amendments up as per the Finance Act number 2 2024 and the circulars issued up to 31st of October. Now, along with that, there is a study material statutory update which has been issued. So, I have already recorded a lecture on the statutory update, which is available. The link has been given along with this video, and judicial update, which is again I'll be sharing the link with you so that this all will be relevant for us for the examinations. Now, बिफोर सॉल्विंग द आरटीपी क्वेश्चंस आपको स्टैट्यूटरी अपडेट अटेंड करना पड़ेगा, आपको स्टैट्यूटरी अपडेट गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सम एमसीक्यूज इन दिस पर्टिकुलर आरटीपी जो कि डायरेक्टली आपके स्टैट्यूटरी अपडेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो कवर करने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चले, so let us start. I assume आप लोगों ने देख लिया है, नहीं देखा है तो link is there in the description box below. You just go through it, go through the statutory update, then only solve these questions. ठीक है, so case scenario 1 तो क्या दिया है हमको? Sugam Private Limited, Mumbai is engaged in manufacturing of ceiling fans and exporting the same to various associated and other enterprise worldwide. The income tax assessment for AY 22-23 was completed by making reference to the TPO, who has enhanced the arm's length price of the international transaction by 855 lakhs. ठीक है, तो उसकी एडिशन हो गया, टीपी एडिशन हुआ है असेसमेंट 2023 में बाय 855 lakhs. The company applied for APA in March 2024 and it was signed in July 2024. The tax assessment for AY 21-22 regarding ALP of international transaction was disputed before the tribunal, which is also set aside for fresh consideration in June 2024. The company also applied for rollback benefit, which was signed in December 24. If the APA is applied, the ALP for 2023, 22-23 would get enhanced by 580 as opposed to 855. तो देखो क्या क्या हुआ है दोनों तीनों सालों में। सबसे पहले तो इन्होंने बोला AY 22-23 का पिकड है ऑलरेडी और टीपीओ ने 855 लाख का एडजस्टमेंट किया हुआ है। AY 21-22 में भी डिस्कशंस चालू थे ALP रिलेटेड और वो ऑलरेडी ट्राइब्यूनल में डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट जो कि फ्रेश कंसिडरेशन के लिए दे दिया गया, सेट असाइड कर दिया ट्राइब्यूनल ने, बोला फ्रेश कंसिडरेशन देखो, असेसिंग ऑफिसर को बोला फिर से पूरा ढंग से चेक करो। ठीक है, नाउ द कंपनी हैज अप्लाइड फॉर एपीए और साथ के साथ उसने रोल बैक के लिए भी अप्लाई किया है। अगर रोल बैक AY 22-23 में लगाया जाता है तो उसमें जो एडिशन है वो 855 की जगह 580 पे आके रुक जाएगा। एडिशन तो होगा बट कम होगा। ठीक है, चलो। Sugam Private Limited has an associated enterprise, Fiber Inc. in Australia. Fiber Inc. wants to appoint an agent to procure raw materials for the purpose of manufacturing of its products in Germany. The person's entity so appointed would be authorized to enter into contracts on its behalf after the negotiations with the supplier. तो वो एक एजेंट अपॉइंट करेगा जो कि रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करके वहां पर सेल करके आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल बाहर भेजेगा एंड ही विल बी हैविंग द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट एंड नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। ठीक है, सुगम प्राइवेट लिमिटेड बोरोड USD 100 lakhs फ्रॉम ट्रिपल INC USA, ये थर्ड पार्टी, ये और कोई तीसरी एंटिटी हो गई, अंडर अ लोन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन जुलाई 2019। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल इज 4% per annum on every half year. For the half year December 2024, interest was paid on February 25 after deducting TDS. तो हर दिन के एक्सचेंज रेट भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट्स टू अनरिलेटेड पार्टी को भी एक्सपोर्ट किया है, मिडलैंड लिमिटेड, एंड डिड नॉट मेंटेन एनी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन। जो भी मेंटेन करना होता है टीपी में वो उसने मिडलैंड के लिए कुछ भी मेंटेन नहीं किया है। एंड द एग्रीगेट सेल मेड टू मिडलैंड वाज 12 crores. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर कैन द कंपनी वैलिडली क्लेम रोल बैक बेनिफिट फॉर द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट? तो सबसे पहले तो रोल बैक क्लेम कर सकते हैं किन सालों के लिए, उससे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि एपीए कब से इफेक्ट में आएगा, है ना। तो एपीए आपका इफेक्ट में आएगा
from the financial year 24-25. We have already discussed when we have studied this chapter कि अगर आप recurring nature के लिए APA में आना चाहते हो तो before the start of that particular financial year आपको डालना रहेगा, एप्लीकेशन करना रहेगी. तो यहाँ पर इन्होंने 24-25 से पहले एप्लीकेशन करी है. So 24-25 से APA वैलिड होगा. 24-25 के पीछे आपको जाना पड़ेगा. 4 साल मैक्सिमम रोल बैक हम ले सकते हैं, राइट. सो 23-24, 22-23, 21-22, 20-21 फाइनेंशियल ईयर. तो एवाई कौन सा हो गया, एक एक साल. तो एवाई 24-25 और उसके पिछले 3 साल और, ये 4 सालों में आप रोल बैक प्रोविजंस क्लेम कर सकते हो. ठीक है, चलो. What is the time limit for filing the modified return of income? तो modified return of income has to be filed जब आपका rollback agreement sign हुआ, वहां से 3 महीना, तो उस मंथ के एंड से, है ना. तो रोलबैक अग्रीमेंट हमारा कब साइन हुआ है, दिसंबर 24 से 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 31 मार्च तक आपको फाइल कर देना है मॉडिफाइड रिटर्न. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ ALP बेस्ड ऑन द APA? तो AY 2023 में हमने बात करी, टोटल एडजस्टमेंट जो हुआ है वो 855 लाख का हुआ है. अगर रोल बैक लिया तो मेरा एडजस्टमेंट बिकम्स 580. तो क्या मैं इसको कम कर सकती हूँ? यस, इट कैन बी रिड्यूस टू 580. इन एनी केस APA की वजह से रिटर्न इनकम से नीचे आप नहीं जा सकते हो. मतलब अगर मैंने रिटर्न इनकम में सपोज मेरी 100 की इनकम बताई है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने इसको 120 कर दिया, APA लगाने के बाद अगर ये 90 हो रहा है तो मैं 90 पे नहीं जा सकती. एट एनी इन एनी कॉस्ट मुझे 100 तो ऑफर करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि अगर APA, तब इस केस में आपकी इनकम रिटर्न इनकम से नीचे नहीं जा रही, एडिशन सस्टेन्ड है. बस फर्क ये है कि एडिशन 855 से घट के 580 पे आ रहा है. ठीक है, तो हम वो तो अलाउ करेंगे, दैट इज अलाउड, दैट इज नो प्रॉब्लम, वो हम अलाउ कर देंगे, तो चलेगा. तो 580 पे हम क्लोज कर देंगे हमारा अगर रोल बैक हो जाता है तो. Now, how much amount of tax is deductible at source by Sugam Private Limited on interest paid to triple INC? Now, first of all, it is a foreign currency borrowing, तो you need to check कि first तो rate of tax कौन सा लगेगा, है ना. TDS नॉन रेसिडेंट का करने के पहले कौन सा सेक्शन लगेगा, बिकॉज इट इज अ फॉरेन करेंसी लोन एंड 194 LC की कंडीशंस फुलफिल हो रही है. अगर आप डेट वगैरह चेक करते हो क्वेश्चन में जो दिया है, 194 LC की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. देयरफॉर आप 194 LC के हिसाब से जो कंसेशनल 5% का रेट होता था वो आप अप्लाई कर सकते हो. तो 100 लाख का आपका लोन है, उसके ऊपर आपका 4% से इंटरेस्ट हाफ ईयरली, और इसके ऊपर TDS लगेगा 5%. इतना तो सबको समझ में आ गया, टैक्स रेट इज 5%. तो 100 लाख का लोन पे हमने इंटरेस्ट लगाया 4%, है ना, डिवाइड बाय 2, तो 2 लाख USD का इंटरेस्ट हुआ, हाफ ईयरली इंटरेस्ट. अब इसको कन्वर्ट कौन सी रेट पे करना है, सो कन्वर्ट आप उसको TT बाइंग रेट पर करोगे. और कौन से TT बाइंग रेट को कंसिडर करोगे? सो इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना, सो TT बाइंग रेट विल हैव टू बी यूज्ड टू कन्वर्ट दैट इंटरेस्ट. चलिए, so next question, how much is the amount of tax deductible at source by Sugam Private Limited on interest paid to triple INC on 28th of February? So 100 लाख USD का लोन है. एक्सचेंज रेट हम कब की पकड़ेंगे, तो कब का इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट है. दैट मींस वील टेक द TT बाइंग रेट ऑफ 72 मल्टीप्लाइड बाय 4% रेट विच इज पर एनम, सो आधा हो जाएगा, है ना. वी विल टेक ओनली हाफ ईयरली इंटरेस्ट. Rate will be 5%. Now, why is the rate 5%? Because in this case, if you see question में आपको फॉरेन करेंसी लोन है और 194 LC की कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं. Because we are fulfilling the conditions of 194 LC, we can claim the concessional rate of 5%. And if you see the interest amount हमारा आ रहा है 1,44 lakh. So on this, you will be calculating the tax, and because the amount is exceeding 1 crore, आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा और सेस भी लगाना पड़ेगा, है ना. सो 100 लाख USD into 72, 4% divide by 2, so that is 1 crore 44 lakhs is the amount of interest which is being paid. And therefore इसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 5%,
एंड उसके ऊपर मतलब टीडीएस, देन उस पे सरचार्ज एंड सेस, तो टोटल आपका टैक्स डिडक्टेबल आएगा 7,63,776। ओके, चलो लास्ट लास्ट ही आएगा इस पे, नहीं दो, ठीक है। In which of the following instances business connections would not get established? Opening a branch in Pune for carrying on business in India, opening a liaison office in New Delhi for finalizing the contracts, okay, appointing Mr. X as an agent for interacting with potential customers and not as an agent in India for several other companies as well, which are not related to Fiber Inc. Appointing Mr. Y in Mumbai फॉर फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सक्लूसिवली फाइबर आईएनसी। तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ाई है, अगर स्पेसिफिक हमारे लिए कोई ब्रांच रहेगी या हमारे लिए कोई एजेंट अपॉइंटेड रहेगा तो बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट एजेंट है, मतलब जैसे कलकत्ता में अगर आप एजेंट रखते हो जो दूसरी कंपनीज का भी काम देख रहा है जो हमसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। How much will be the quantum of penalty leviable? Nil, because in this case Midland Limited, it was not necessary to maintain any documents considering the nature of transaction and that the person is not related to the Sugam Private Limited, ना unrelated party है, तो इसके ऊपर कोई भी penalty नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। So these are the questions for first case scenario. Now let us talk about case scenario 2. केस सिनारियो 2 आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आपका स्टैट्यूटरी अपडेट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज अ न्यू गाइडलाइन विच इज गिवन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर इनकम टैक्स, उसी के ऊपर ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरी थ्योरी है, लेकिन जब तक आप वो अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टाइमली पेमेंट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉक्स, इट हैज कमिटेड मल्टीपल ऑफेंसेस एंड उसके डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एप्लीकेशन उसने अलग अलग एप्लीकेशंस करी हुई है पहले कंपाउंडिंग की, और अब आगे भी वो एप्लीकेशंस कर रहा है। सो बेसिकली द न्यू गाइडलाइंस वी ऑल नो हैव बीन इफेक्टिव फ्रॉम 17th of October 2024, ठीक है। अगेन आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन दैट स्टैट्यूटरी अपडेट। सो ये सारे आपको डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या बोला है, ऑल ड्यूज टैक्स वगैरह हैज बीन पेड बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड नेसेसरी अंडरटेकिंग्स एंड अग्री टू विथड्रॉ द रिलेटेड अपील्स, ठीक है। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फीस भी उसने पे कर दी है, दोनों की, कंपाउंडिंग सिंगल और कंसोलिडेटेड दोनों की। हैज डिलेड इन डिपॉजिटिंग टीडीएस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, हाउएवर नो प्रोसिक्यूशन हैज येट बीन कमेंस्ड। टीडीएस में उसने ऑफेंस किया है, डिले किया है डिपॉजिट करने में, लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है, बाकी उसने सब कुछ पे कर दिया है। एंड नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्ज फॉर अबव ऑफेंसेस इज 45,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ एज पर द गाइडलाइंस, हाउ विल बी द एप्लीकेशन डेटेड 20th of July pending as on 17th of October, जो नए गाइडलाइंस का इफेक्टिव डेट है, बी ट्रीटेड। तो वी ऑल नो कि अगर आपकी कोई पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो रिवाइज्ड गाइडलाइंस में फर्स्ट एप्लीकेशन मान लिया जाएगा और उसके लिए अलग से कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो नया एप्लीकेशन आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट इज what rate of compounding shall be applicable on compounding for 23-24 included in the consolidated application? This will be covered in the, आपने हम लोगों ने वो चार्ट देखा हुआ है स्टैट्यूटरी अपडेट में, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ एक बार। सो बेसिकली इन दैट वी हैव आल्सो गॉन थ्रू कि कब कब आपका कौन सा कंपाउंडिंग रेट लगेगा, इफ इट इज विद इन द टाइम लिमिट एंड first application. So basically in this case your normal compounding charges will be applicable, and so no application earlier is rejected and it is within the time limit, then आपका जो normal compounding charges होता है वही यहाँ पर लगाया जाएगा। ये आपको सारा चार्ट भी दिया है जिससे आपको एक एग्जाम्पल दिया था, so that it can be understood. So एक आपका यहाँ पर सिंपल सा हो जाता है that normal charges will be applicable. What rate of compounding shall be applicable on compounding the offense for financial year 2016-17 included in the consolidated application? So 276B for 16-17, 1.2 times आप कब जाओगे? So basically उन्होंने अपने को यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस दी हुए हैं। अगर आपका सेकेंड टाइम एप्लीकेशन है तो then you go for 1.2 times of the normal rate. So 276B, now ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट टेबल दे हैव गिवन इन द स्टैट्यूटरी अपडेट, है ना। अगर हम देखेंगे 276B की तो 2016-17 की जो एप्लीकेशन है जो फाइल हुआ है वो यहाँ पर इट विल बी कंसिडर एज अ सेकेंड एप्लीकेशन, है ना, बिकॉज ऑलरेडी पहले एप्लीकेशन फाइल्ड हैं। सो यहाँ पर आपका ये वाला जो एप्लीकेशन है
that will be considered as a second application. Therefore आपका 1.2 टाइम्स यहाँ पर चार्ज होगा. एंड सिमिलरली जो आपने 18 दिसंबर को फाइल करा है 276B का, दैट विल बी द थर्ड. नाउ थर्ड एप्लीकेशन में आपका क्या हो जाएगा 1.4 टाइम्स. तो आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस आपको दिया हुआ है ना, इसमें आपका जो है वो यू विल बी अप्लाइंग द सी. सो 45,000 का आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस है, राइट. सो इसके ऊपर अगर मैं अगेन आपको थोड़ा सा, मैं इसलिए स्टैट्यूटरी अपडेट से भी लिंक करते जा रही हूँ. सो वॉट एवर इज द नॉर्मल रेट के ऊपर आपका 1.4% आप चार्ज करोगे, राइट. सो इन दिस केस अगेन you will have to apply. So now the time elapsed is more than 50%, more than 12 months, तो 50% तो बढ़ेगा ही, वो तो रहना ही है. So that you have to do, plus इसमें आपका 1.4, so your application fees comes to 94,500, है ना. So basically again you need to know the guidelines. इसमें कुछ भी ऐसे बहुत लॉजिकल या कंसेप्चुअल नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि थर्ड एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली बियॉन्ड 12 मंथ्स है, तो 50% तो बढ़ेगा ही सही. एंड देन उसके बाद 1.4 टाइम्स, बिकॉज दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, है ना. So that is something which is to be kept in mind. Application can be filed for third quarter of 24-25. Yes, जिसमें वो गलती हुई है उसकी TDS में, yes it can be filed even if the proceedings are not yet commenced, है ना. सो भले ही से अभी प्रोसीडिंग्स कमेंस नहीं हुई, आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो दीज आर द क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन दैट कंपाउंडिंग. कब आपका कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन पे क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन पे कितना चार्ज है, थर्ड एप्लीकेशन पे कितना चार्ज है. गो थ्रू द गाइडलाइंस, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इन केस देयर इज एनी इशू फील फ्री टू डिस्कस. A search is conducted by, now next MCQ, दो छोटे छोटे MCQs हैं that will close our revision test paper. A search is conducted by Income Tax Department in India in the premises of Surya Prakash, and it has come to notice of the department that Surya Prakash has earned income of 5 lakhs in country X. 25 मार्च 25 को उनका सर्च हुआ in 2021. Further, Income Tax Department noticed the existence of undisclosed gold jewelry which was purchased in April 2022. Neither this income nor the asset in question has any bearing to the income chargeable under the provisions of Income Tax Act. The jewelry had been purchased at 4.2. Its value as per the valuer recognized by the government is 5.2 lakhs on 1st of April 2024 and 5.3 lakhs as on 25 मार्च, जिस दिन सर्च हुई उस दिन, है ना. और स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे 5.2 लाख था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ब्लैक मनी एक्ट. तो चलो ब्लैक मनी एक्ट में क्या क्या देखना पड़ेगा, अनडिस्क्लोज्ड एसेट का क्या ट्रीटमेंट होगा और अनडिस्क्लोज्ड आपकी इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा. तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है हमारी, वो हमारी जिस साल की है उसी साल में जाके टैक्सेबल होगी, और अनडिस्क्लोज्ड असेट जो है वो जिस साल हम लोगों ने सर्च किया है उस साल हमारा एप्लीकेबल होगा, है ना. And what will be the value that will be considered? So value will be as on the date of the first day. So हमारा value will be 5.2 lakhs, that is 1st of April 24, and undisclosed asset will be taxable in the year of 24-25, that is the year in which it was searched. And the second income, undisclosed income will be chargeable जिस साल की वो income already है ना. So in that year it will be charged to the tax. ठीक है, चलो next आ जाते हैं. Peter PTE Singapore, a foreign institutional investor, is a subsidiary company of Zoom Limited based on UK. Peter PTE Limited commenced its activities in India from 1st of December 2024. On 31st March, it earns short-term capital gain on transfer of listed securities. How much is the tax payable? Simple है, कभी earn हुआ है उसको post 23rd July. Post 23rd July, the due date have been changed. I have also released separate videos on amendments on capital gain, amendments on reassessment proceedings. जो major amendments आए हैं, Finance Act 24 has brought a lot of amendments. तो मैंने उनके भी specific videos बनाए हैं जिसमें ये capital gain वगैरह सब covered है. So go through that as well. So 70 लाख का हमारा income है, इसके ऊपर आपको 20% plus cess हमारा charge किया जाएगा. So 14.56 will be the tax which is payable on this short-term capital gain. Okay, so these are the objective questions given for the CA final examinations. Go through it. A very different kind of RTP, बहुत ज्यादा solve करने को नहीं था हमारे पास, but
a bit different from what normally the RTPs are, more of theory but very peculiar and specific kind of questions. तो अगर आपको provision नहीं पता होंगे तो ये question solve नहीं हो पाएंगे, है ना? So go through that, go through a deep analysis of these sections and let me know if you have any issues, any doubts in this. Feel free to reach out. All the very best for your examinations.